or in the other thing you can say interpretation. The third part is that try and get in the shoes of the author. That's it. And your RC is, I would say, well, technically achieve 85 to 90% accuracy. As of now, as of this moment, I'm saying. ठीक है? Is this part clear? Come on, fast. I don't have already. Yeah, Casey. Okay, perfect. Go ahead then. Clear now. Clear. Okay, perfect. First one. As the RC comes into your mind, as the RC comes into your computer screen while you're attempting the exam, don't think anything. This is your code that you have to consider. Start reading with clear mind. Start that the word anarchy comes from the Greek anarchia, meaning contrary to authority or without a ruler, and was used in a derogatory sense until 1840, when it was adopted by Pierre Johnson Friedel to describe his political and social ideology. Okay, something about anarchy and its usage. That's it. We are done. Mr. X argued that organization without government was both possible and desirable. In the evolution of political ideas, anarchism can be seen as an ultimate projection of both liberalism and socialism. Okay. Then it is saying that this thing called anarchy, it is saying that it is used to be seen as both in the liberal sense and at the same time with a sense of socialism. And strands of anarchist thought it can be related to their emphasis on one or the other of these. If I'm summarizing this, author is introducing anarchy not as a word, not as a metaphor, as a concept. Then it is saying that once this concept has come to the usage, it is being executed or it is being come into the practice or it is affecting different ideologies or frameworks. That's it. Khatam. First paragraph itna hi tha. Is there any problem in this? No, Casey. Okay, now while you are attempting supposedly, this was the mentor's mindset, right? I'm gonna solve this with the mindset of the student when he's sitting in that CAT exam or GMAT exam. The student read that the word anarchy. Okay. कोर्ट में मतलब एक्सप्लेन किया जाएगा. इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक अनार्किया मीनिंग कॉन्ट्ररी और कुछ कुछ बकवास कर दिया है. अब टेक्निकली स्टूडेंट वुड थिंक कि यार इसमें ये डेरोगेटरी सेंस भी है, इसमें ये अडॉप्शन भी है. अच्छा, ये बोला जाता है अगर कहीं पे किसी का नाम आ रहा है तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है, आइडियली हमको ये बताया जाता है. ठीक है. एंड देन इट इज सेइंग कुछ पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी के बारे में बता रहे. The mistake that a student does in this is that a student goes with detailings. उसको हर एक चीज के detailings पसंद है. And those detailings, I would say out of 100, detailings वाले फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 30 out of 100 चीजें जो रहती हैं वो important रहती हैं. Rest are irrelevant. So the crux is that you have to identify, you have to be voracious enough, you have to be consistent enough, and you have to be high on practice to identify this 30 goals. That's it. Abhi clear what you have to do, what was this passage about? Clear hai ki nahi? Jaldi batao. Yeah, Casey. Okay, Don't moving fall ahead. for Now, detail. think that this is the concept. It was introduced as a concept. फिर इसका usage क्या था? इस बंदे ने आखिर कैसे ये चीज को एक्सप्रेस किया है कि लिबरलिज्म में भी आ रहा है, सोशलिज्म में भी आ रहा है. ठीक है, कुछ पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी के बारे में बता दी. नाउ कीप दिस आइडिया इन द माइंड. ठीक है सर, मैंने इसको सोचा, ये मेरे दिमाग में है, एंड कैरिंग फॉरवर्ड ना उस चीज को दिमाग में रखते हुए अब आप आगे बढ़ते हैं. क्योंकि देखो यार, हिस्टोरिकली anarchism arose not only as an explanation of the gulf between the rich and the poor in any community, and of the reason why the poor have been obliged to fight for this share of a common inheritance, but as a radical answer to the question what went wrong. बहुत बड़ा मतलब ओवरऑल आपको यहां तक पढ़ना है. क्या टेक्निक होनी चाहिए?
what you should do in this case, because it's really quite a long thing that you have to read, and considering ये इतना लंबा है, nobody would be, you know, nobody will be thinking कि यार मैं इतना सारी चीजें पढ़ पाऊंगा. Just a second. No? ठीक है, I got it. ये सर इतना लंबा सा, इतनी लंबी चौड़ी चीजें हम बता रहे हो, बट just have to read the relevant part. Okay, historically, मतलब historical instance अब बता रहे हो उसको, and it is saying that anarchism जो है, ठीक है, वो कैसे emerge हुआ है. So emergence of anarchism, emergence of anarchism. Author is talking about this thing. How is it happening? What it was doing? What did it do? Everything. लिख देते हैं. What? Why? How? And that is the action plan of anarchism. Is it clear? Yeah. Okay. Overall, author ने सिर्फ यहाँ पे यही किया that explanation between rich poor community reason, poor obliged fight, common inheritance, radical answer, what went wrong, French Revolution. It had ended not only with a reign of terror and the emergence of a newly rich ruling caste, but with a new emperor, Napoleon Bonaparte, strutting through his conquered territory. अब बता रहे हैं कि भैया देखो, आइडियली आप जो सोच रहे थे कि anarchism जो है, ठीक है, this word anarchy, it emerged as a concept. Ideally, that was not the case. The case is that it had ended not only with a reign of terror कि भाई आ तो गया, obvious है, कोई चीज अगर आ रही है मार्केट में, if that thing has come, it is pretty much obvious कि उस चीज को कभी ना कभी निकलना भी पड़ेगा. If there is a start to anything, there is an end as well. ठीक है, तो अब ऑथर उस चीज को बता रहा है कि यार देखो, इतना सारी चीजें होने के बाद एनार्किज्म ये सारी चीजें किया, एमर्ज हुआ, उसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, किसके साथ किया. End of the day, anarchism was trying to do one thing, and that was that it tried to share something of a common inheritance and was trying to answer the question that what went wrong. That is what anarchism was trying to. Nothing like कि anarchism is something जो, you know, आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स में बांध दे. एनार्किज्म इज नॉट समथिंग जो आपको बहुत ज्यादा चीजें जानने पे मजबूर कर दे. एनार्किज्म इज नॉट एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो बेसिकली द थिंग दैट कम्स और दैट बॉइल्स डाउन टू द पार्ट इज कि भैया अब वो चीज हम समझ गए, अब उसका हो रहा है एंड. ठीक है, एंड कैसे हो रहा है, दैट इट केम एंड इट emerged and now it is ending with the emergence of a newly rich ruling caste. That is emperor आता है एक, an emperor came. His name is Napoleon Bonaparte. I'm just writing NB in this. Napoleon Bonaparte. That is what the author is trying to do. ठीक है, strutting through his conquered territories. ठीक है, चलो समझ गए. ओवरऑल यहाँ पे आपको बताया गया है इस पैराग्राफ में, एमरजेंस होता है उस चीज का, देन वो कैसे एग्जिस्ट किया, देन उसका एंड कैसे होता है, और उसका फिर अफेक्ट क्या होता है. सॉरी, इफेक्ट नॉट अफेक्ट. इट इज टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इट. दैट्स इट. वी आर डन विद द सेकंड पैराग्राफ. नाउ while I was reading second paragraph, at the same time there was an idea that was in my mind as of that moment. I was thinking कि यार ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई, एनार्किज्म आया, कंसेप्ट बना, वो फिर धीमे धीमे वो उसको हिस्ट्री में डाला गया, उसके इतने सारे फ्रेमवर्क्स निकल के आए, है ना. कुछ उसके इमरजेंस के बारे में बताया कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में बताया. स्टार्ट होता है, एंड होता है, नेपोलियन भाई साहब आते हैं. ठीक है, एक चीज नहीं समझ में आई सर, ऑथर आखिर इतनी सारी चीजें एनार्किज्म के बारे में क्यों बता रहे हैं. व्हाट्स द पॉइंट दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक व्हाइल ही इज टॉकिंग अबाउट एनार्किज्म. आखिर क्या चाहता है ऑथर. सो दैट इज व्हाट आई सी कि भैया ऑथर का जो इंटेंट है, द ऑथर्स इंटेंट, always keep that in mind. So Manju, tell me this one thing.
What exactly is the author's intent in this? What is he trying to? How anarchism come far along I'm not from convinced. the Try harder. why the anarchism come this far. That is written, something else which is not written. Tell me that. Read between the lines. आपने हाउ बोल दिया, वाई बोल दिया, क्रक्स क्या है इन सारी चीजें? कम ऑन ट्राई, लिखा है सब कुछ. Think critically, as if you are in the exam hall and you have to think all of these things accordingly. Do you think anarchism emerge हुआ, फिर उसके बारे में उसको एज अ कंसेप्ट बताया, फिर उसका यूसेज बताया, कैसे डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फिट किया वो बताया, नेपोलियन आया वो बताया, एंड कैसे हुआ ये बताया? डू यू थिंक इज टॉकिंग मोर अबाउट द रोल ऑफ anarchism? Would this be something that I can go for? बताओ जल्दी. Is the author talking about the role of anarchism in the historical sense? Is he doing या that? बट कैसे वो आगे पैसेज में भी और कुछ बोल सकते हैं ना मेन. I totally get your part, but what I'm trying to say, अभी तक में आपको क्या समझ में आया? अभी तक रोल ही बता दिया क्या अभी क्या तक हुआ उसने कैसे रोल हुआ. बताया. अच्छा चलो ठीक है, अब मान के चलो there is a person in your life, ठीक है? So let's try to play a role in this. Consider that you love a girl and that girl name is something, कुछ भी XYZ नाम दे दो, ठीक है? अब उस लड़की का आपके लाइफ में एक रोल रहता है, ठीक है? कि वो आपको इम्प्रूव करने आई या फिर वो आपसे कुछ सीखने आई या एनीथिंग XYZ. What do you think रोल के बाद क्या है? As a person, what do you think that what might Effect. happen? हाँ? इफेक्ट अफेक्ट या इफेक्ट? इफेक्ट ए वाला ई वाला? ई ओके, उसके कुछ इफेक्ट्स होंगे. ओके, आप बोल रहे हो उसके कुछ इफेक्ट्स होंगे, देन इफेक्ट्स के चेंजेस बाद चेंजेस. ओके, चेंजेस कुछ चेंजेस होंगे, देन देन इट विल स्टेबलाइज. स्टेबलाइज. ओके, एंड देन आगे क्या? सी आई एम नॉट टॉकिंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि भाई काफी सारी चीजें एकदम ऊट-पटांग जा रही हैं, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, एंड देन समथिंग एल्स हैपेंड. आई एम जस्ट आस्किंग दिस वन वेरी सिंपल थिंग फ्रॉम यू, बिकॉज यू नो द एंटायर रोल ऑफ द पैसेज इज हिडन इन दिस. स्टेबलाइज हुआ फिर क्या? सोचो थोड़ा उस तरीके से, थिंक, यू नो थिंक. जब आप सोचोगे उस तरीके से, वही आपको कैट या किसी भी एग्जाम में हेल्प करेगी. उसके आगे कुछ नहीं हो सकता कैसे. उसकी उसका कुछ नहीं हो सकता नहीं कैसे भाई. कंक्लूड तो करेगा वो ना. आएगा कुछ इफेक्ट होगा बाद में कुछ चेंजेस होगा देन इट विल. I can bet यार you are a single guy then. I would say I would say you are a single guy. No worries, चलो ठीक है. तो अभी अपन रोल तक देख लिया, उसके इफेक्ट्स, चेंजेस, स्टेबल, उसका जो स्टेबलाइजर है वो, एंड उसका कंक्लूजन, अपन ये चीज देखेंगे, ठीक है? लेट्स सी. The anarchists and their precursors were unique on the political left in affirming that workers and peasants, grasping the chance that arose to bring an end to centuries of exploitation and tyranny, were inevitably betrayed by the new class of politicians, whose first priority was to re-establish a centralized state power. रोल था, अब उसके इफेक्ट क्या होने देखो. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अपने आप से, आई एम जस्ट सेइंग एवरीथिंग जो अभी आपने हमें बताया और जो पैसेज बोल रहा है. आई एम डूइंग ओनली दैट थिंग, नथिंग ऑफ एनी सॉर्ट, ठीक है? अनार्किस्ट और उसके जो पूर्वज रहे हैं, ठीक है, दे हैव ऑलवेज बीन अ यूनिक पार्ट ऑन द पॉलिटिकल लेफ्ट. और वो हमेशा से एक चीज पे फोकस किए हैं, दैट दे वर अफर्मिंग द वर्कर्स, द पेजेंट्स, कि भाई देखो आपका जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, नाउ इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू ग्रास्प द चांस व्हिच वाज समवेयर एग्जिस्टिंग प्रीवियसली, ठीक है? और यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से अब जो आपका एक्सप्लॉइटेशन होता आ रहा था, ठीक है, अब वो एंड हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम they were inevitably betrayed by the new class of politicians.
उनका एक ही मोटिव था कि सेंट्रलाइज्ड स्टेट पावर होना चाहिए. After every revolutionary uprising, usually one at a heavy cost for ordinary populations, the new rulers had no hesitation in applying violence and terror, a secret police, and something XY. Overall, इफेक्ट के बारे में बताता है. देन बता रहा है कि भाई चेंजेस क्या हो रहे हैं. देखो, चेंजेस यहाँ से आपके चालू हो गए फ्रॉम द स्टार वाले पार्ट कि भाई रीस्टैब्लिश हो रही हैं चीजें, एक नई चीज आ रही है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चेंज, एंड देन उस चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ऑथर उस चीज को जस्टिफाई कर रहा है. इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? इतना क्लियर कि नहीं? Yeah. परफेक्ट. कंसिडरिंग दिस, अभी आपने क्या बोला, रोल इफेक्ट चेंजेस. अब देखो स्टेबलाइज बोला था आपने, ठीक है, देखते हैं आगे. For anarchists, the state itself is the enemy, and they have applied the same interpretation to the outcome of every revolution in the 19th and 20th century. Okay, मतलब one size fits all, anarchist ने ये बोल दिया. ठीक है, चलो. This is not merely because every state keeps a watchful and sometimes punitive eye on the descendants, but always remember, but के पहले वाला पार्ट उतना जरूरी नहीं होता जितना उसके बाद वाला पार्ट. ओवरऑल हमने इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ी सर, ये यहाँ से लेकर के पूरा इतना सारा ये सब कर लिया. दैट वाज नॉट ऑफ दैट मच इम्पोर्टेंस जितने इम्पोर्टेंस का आपका बट के बाद वाला पार्ट होगा, इतना अब जरूरी है. देखते हैं चलो. बिकॉज एवरी स्टेट प्रोटेक्ट्स द प्रिविलेजेस ऑफ द पावरफुल, नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग. हर स्टेट का एक मुद्दा होता है दैट दे विल प्रोटेक्ट द प्रिविलेजेस ऑफ द पीपल हु आर इन पावर, व्हिच इज व्हाई नाउ वी कैन से कि यार अभी तक जो हम समझ रहे थे दैट वन साइज फिट्स ऑल वाला केस, ठीक है, दिस इज नॉट गोना बी अ सक्सेसफुल कॉज. ये हमारा सक्सेस नहीं प्रोवाइड करेगा. दिस इज नॉट गोना प्रोवाइड यू guaranteed success. Let me be very clear, guaranteed. This won't be getting you guaranteed success. Why? Because हर स्टेट की अपनी खुद की प्रायोरिटीज होती हैं. Then it says that the mainstream of anarchist propaganda for more than a century has been anarchist communism. Propaganda सेंचुरी से ज्यादा एक anarchist communism जो ये बोलता है कि भाई साहब देखो, the property in land, natural resources, and the means of production should be held in mutual control by local communities, federating innumerable joint purposes with communes. It differs from state socialism in opposing the concept of any central authority. फिर यहाँ पे देखो अब क्या कर रहे होता है. पहले उसने बोला कि भाई एक centralized power, चलो ठीक है, I get your part, I respect your notion, but at the same time centralized चीज आने के बावजूद you have to understand this part कि यार एक लोकल डिस्क्रेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है. दैट लोकल डिस्क्रेशन जस्टिफाइज एंड क्लियरली स्टेट कि भैया देखो जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं, प्राइमरली द रिसोर्सेज दैट हैज टू बी हेल्ड बाय लोकल कम्युनिटीज. ऑथर ये चीज बोल रहे हैं, मतलब कुल मिला के अगर बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है वो लोकल कम्युनिटीज के पास होना चाहिए, मतलब अभी नहीं है, विच इज वाई बोल रहा है कि भाई जो चीज अभी नहीं है वो आइडियली होना चाहिए. अब ऑथर उसी चीज को आगे एम्फोसाइज कर रहा है कि भाई इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट सोशलिज्म एंड अपोजिंग द कांसेप्ट ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी, सम अनार्किस्ट प्रेफरेंस, अनार्किस्ट कम्युनिज्म, कलेक्टिव अनार्किज्म, ठीक है, अनार्किस्ट कम्युनिज्म, collectivist anarchism, in order to stress the obviously desirable freedom of an individual family to possess the resources needed for living, while not implying the right to own the resources needed by the others. मतलब आप ये चीज बोलो, ठीक है, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ऐसे कुछ लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, who are trying to bifurcate, who are trying to divide, who are trying to bring in the concept कि यार देखो एक anarchist communism है, and just want to write ANARC पूरी लिख दो. एक है anarchist communism versus दूसरा है collectivist communism. अच्छा, पता है इसमें फोकस किस चीज पे दिया जा रहा है इसको पे? चलो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मंजू, हु इज इन द मीटिंग? राशिका. ओके, राशिका स्विच ऑन योर माइक.
Rashika, please switch on your mic. हाँ. Okay. Tell me the Am I difference. audible? Yeah, you're audible, pretty much audible. What's the prima facie difference in both of these things? क्या है? ऑथर किस चीज पे फोकस कर रहा है इस चीज में? बताओ. बनेगा हाँ या ना? No. Okay, no worries. Try to understand. एक है anarchist communism that is gonna focus only on the people who follow the concept of anarchy. या फिर the people who are anarchists. That's right. It's gonna follow. Or it's gonna go with the crowd, which believes that it has to be existing for people in general. अब ध्यान से देखो. ऑथर बोल रहे हैं कि in order to stress the obviously desirable freedom of an individual or family to possess the resources needed for living, while not implying the right to own the resources needed by the others. मतलब आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो इन दोनों के मध्य में एक जो इन दोनों के मध्य में जो डिस्पैरिटी है उसको ऑथर ब्रेक करना चाहता है. Then it says, there are unsurprisingly several traditions of individualist anarchism. One of them deriving from the conscious egoism of the German writer Max blah 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 blah. जो बोलते हैं that in protecting our own autonomy and associating with others for common advantage, we are promoting the good of all. These thinkers differed from the free market liberals in their absolute mistrust of American capitalism and in their emphasis on mutualism. मतलब यहाँ पे ऑथर कंक्लूड कर रहा है. The conclusion now comes. The conclusion itself says कि यार देखो ये जो thinkers हैं, ठीक है, they are trying to bifurcate या they are trying to bring a clarity. एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं किन के बीच में कि भैया जो जनरल पब्लिक है वर्सेस द पीपल हु आर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ एनार्किज्म. खत्म. दैट वाज ऑल अबाउट द पैसेज केवल इतना था और कुछ नहीं था पैसेज. ये बात क्लियर है? या कैसे? अच्छे से. Yeah, it is clear. Okay. See, ideally I would say it is a philosophy based passage. है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी because philosophy हो गई, psychology हो गई, these are not something जो easy going रहते हैं स्टूडेंट के लिए, है ना. They struggle and you are always free to leave the passage of philosophy and psychology when it comes in CAT. वो स्कोर बूस्टर्स रहते हैं. I would say आपने मान के चलो 3 पैसेज आपके जनरल से आ गए, 1 पैसेज आपका फिलोसफी से आ गया, 2 पैसेज आपके फिलोसफी से और 2 पैसेज आपकी इन जनरल से. तो पता है अपने आप पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो यहाँ पे तो चलो ठीक है न्यूट्रल रहेगी, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल अपने आप बढ़ जाएगा. इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस मच ना, 2 जनरल पैसेज अगर अटेम्प्ट कर देते हो आपको आराम से 95 प्लस परसेंटाइल आराम से आएगा इसमें. उससे ज्यादा जाना है अगर बेट ले सकते हो एंड इफ यू हैव द कैपेबिलिटी देन यू कैन गो फ्रॉम 98 प्लस परसेंटाइल एक पैसेज अटेम्प्ट करके. अगर दोनों कर दिए देन यू विल क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ 99.5 परसेंटाइल. ये उसका ब्रेकडाउन है. तो ये बात क्लियर है कि जल्दी बताओ. ओके, let's go towards the questions. कैसे ऐसा हमारा ब्रेकडाउन अभी एक दिन में एक स्लॉट सॉल्व करता हूँ ना, इसमें 3 आरसी तो इजी रहता है एक स्लॉट में, एक आरसी तो बहुत डिफिकल्ट रहता है. हाँ वो स्कोर बूस्टर रहता है बेटा, ऐसा नहीं कि आपको चारों सॉल्व करने रहते हैं.
आप स्ट्रैटेजिकली पिक करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि भैया किस पे आपको फोकस करना है, किसको आपको छोड़ना है। या कैसे डू इन द ऑल स्लॉट पहला आरसी का ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ, कौन सा फर्स्ट कौन सा नेक्स्ट, देन वो कौन सा लास्ट वाले रहते हैं वो तो डिफिकल्टी रहता है। अभी इस मंथ में ये चीज करो, देन 16 जून से एक दूसरी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आरसीज में पिक एंड सिलेक्ट कैसे करते हैं, किसके बेसिस पे आपको पिक करना चाहिए आरसी। बट एज ऑफ नाउ 15 जून तक यही स्ट्रैटेजी करनी है, ठीक है। चलो, या which one of the following best expresses the similarity between American individualist anarchist and free market liberal, as well as the difference between the former and the latter? Okay. Question is way too much long, difficult to understand. क्या करना चाहिए मंजू, जल्दी बताओ, फास्ट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अटेम्प्ट करें या ना करें फर्स्ट गो में? नहीं करे। राउंड वन में आई वुड होल्ड इट आउट, ठीक है चलो। आई हेल्ड दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये ठीक है। द ऑथर मेक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स इन द पैसेज एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स इन द पैसेज एक्सेप्ट, सब सही है, सारी चीजें हैं पैसेज में सिवाय एक के। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, जल्दी बताओ। नेगेटिव। You are searching for answer that is negative, that is not existing in the passage. No, individual anarchism is actually constituted of many streams of all which focus on the autonomy of the individual. ठीक है, मतलब इसमें ऑथर किस चीज को बता रहा है कि भाई, सॉरी कॉपी, सॉरी, मान के चलो अभी फॉर अ मोमेंट कि ए बी सी डी सब सही है, जस्ट फॉर अ मोमेंट आई होप से कि सारे सही है सच में, फॉर अ मोमेंट एग्जाम्पल के तौर पे ये कंसिडर किया, ठीक है चलो सुनो। अभी ए को पढ़ते हैं। इंडिविजुअलिस्ट anarchism is actually constituted of many streams, all of which focus on the autonomy of the individual. Now, okay, when I read this, the first thing that comes to my mind is that this anarchism concept, which was talking about this individualistic scenario, do you think it was given in this concluding part? Read this underlined part first and then answer what I'm asking. Do you think it is really discussed? या कैसे इट इज गिवन दैट। Considering that. अच्छा sorry, राशि नाम पढ़ लिया? या राशि, राशि, did you read? हाँ बट मुझे समझ नहीं आया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे थे, या छोड़ो ऑप्शन देखते हैं। इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म, भाड़ में गए, गोली मार गए। कंसिडर दिस थिंग एज एक्स. X is actually constituted of many streams, all of which focus on the autonomy of the individual. मतलब X जो है फोकस कर रहा है कि भैया इंडिविजुअल की फ्री विल है। ये समझ आएगी नहीं? ये पार्ट क्लियर है कि नहीं? ठीक है चलो अब देखते हैं पैसेज। पैसेज में बोलता है in protecting our own autonomy and associating with others for common advantage, we are promoting the good of the whole. These thinkers differed from the free market liberals in their absolute mistrust of American capitalism and in their emphasis on mutualism. मतलब पैसेज क्लियरली ये बोल रहा है कि भाई when you are protecting an autonomy of your own, protecting your own autonomy and you're trying to associate that with others for common advantages, we are promoting good for all. मतलब आपके पास एक फ्री विल है, उस फ्री विल के बेसिस पे यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि यार देख मैं ये सोचता हूँ, ठीक है, व्हाट आई थिंक कि अगर हम डिमांड सप्लाई में देखें, व्हाट आई थिंक पेट्रोल के प्राइसेस 110 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। अब ये हमारा पर्सनल नोशन है, ठीक है, कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो 110 पे क्लोज हो जाने चाहिए। आई हैड अ फ्री विल, आई थॉट ऑफ इट। डू यू थिंक बाकी लोगों के लिए भी ये चीज सही होगी, गलत होगी या न्यूट्रल? न्यूट्रल रहेगी। ओके, क्यों रहेगी न्यूट्रल? मतलब जरूरी नहीं है ना कि वो 110 ही सोचे या फिर उससे ऊपर उससे कम भी सोच सकते हैं ना, इसलिए न्यूट्रल मतलब। ठीक है, सो डज इट मीन कि आपने एंड ऑफ द डे आपने लोगों के लिए अच्छा सोचा?
अपने लिए आपने अच्छा सोचा, बट बाय डिफॉल्ट वो लोगों के लिए भी अच्छा हो गया। कुड इट बी द केस? No. नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। बी वेरी मतलब ऑनेस्ट विद दिस। मैंने मेरा सोचा ना, तो उसमें तो मैंने लोगों का कुछ सोचा ही नहीं, तो फिर ठीक है, कैसे मैं डिसाइड व्हाट आई एम करूंगी? व्हाट आई एम सेइंग इज आपने अपना सोचा कि 110 से ज्यादा प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए। हम्म। डू यू थिंक कि आपका ये सोचना बाय डिफॉल्ट लोगों की थिंकिंग से कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएगा? कि भाई हाँ यार, हम्म। लोगों को भी लगेगा कि 110 नहीं जाना चाहिए, 110 के ऊपर नहीं जाना हाँ, चाहिए। लग सकता है मतलब। लग सकता है, राइट, विच इज व्हाई वी कैन से आपकी एक फ्री विल है कंस्टिट्यूटेड ऑफ मेनी स्ट्रीम्स, all of which focus on the autonomy of the individual. No matter कितनी चीजें आपके सामने आ जाएं, end of the day it's the case कि भैया आपको ये समझना है कि हाँ, मेरा जो सोचना है वो बाकी लोगों का भी सोचना हो सकता है, वो उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होगा। ये बात क्लियर है? हाँ। चलो ठीक है। कंसिडरिंग दिस, ये तो पैसेज में गिवन है, ये नहीं हो सकता। चलो अब देखते हैं। द पॉपुलर परसेप्शन ऑफ anarchism as espousing lawless, okay, and violence comes from a mainstream mystery. This option is demanding that please attack me. That is what this option is doing. जो बोलते हैं ना कहावत है, आ बैल मुझे मार. So this option is trying to do that thing. It is trying to espouse lawlessness. That means you're ये trying बहुत to. ज्यादा एक्सट्रीम, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर रहा है, इसलिए इसको अटैक करेंगे। Yes, it is extreme, but at the same time, what we do in our classes, देखो, we don't eliminate things on the basis of extreme है, general है ना, we go for the logic, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें बहुत कंफ्यूज कर देती हैं, तो लॉजिक पकड़ना जरूरी है, ठीक है? Although it is right, I'm not saying it is incorrect, but at the same time, think for something more, ठीक है? Espousing lawlessness. पहली चीज तो you are trying to provoke chaos. Just a second. भाई प्लीज गाली गलौज नहीं करो ना, क्लास चल रही है। सॉरी फॉर दैट। पॉपुलर परसेप्शन ऑफ causing lawlessness, lawlessness मतलब ठीक है भाई, यू आर ट्राइंग टू प्रोवोक कि कुछ ना कुछ chaos हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, नॉट सेइंग होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड वायलेंस कम फ्रॉम अ मेन स्ट्रीम mistrust of collectivism. मतलब you are trying to say that this collectivism, mutual one, it is going to, like, it is the causal thing, या फिर it is the mother of violence. Is this what the passage was trying to do? Come on, answer fast. क्या पैसेज सच में ये कर रहा था? No. It was it was just trying to bring to your attention that कि ठीक है यार, सारी चीजें एनार्किज्म जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके कुछ पॉजिटिव कंट्रोल्स भी हैं, कुछ नेगेटिव कंट्रोल्स भी हैं। यू कैन नॉट से ना कि भाई वो म्यूचुअल वायलेंस की तरफ जा रहा है, वो केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें पता है, देखो, पहली चीज, एक तो ये हो गया ऑप्शन एक्सट्रीम, दूसरा कॉज इफेक्ट जो है वो फ्लॉड है, तीसरा इसमें क्या है कि भाई हाँ, इसने क्रक्स को थोड़ा सा मिसडायरेक्ट करने की कोशिश की है, और जो इसका वो है टोन है, इट इज अ नेगेटिव वन। नाउ राशिका, स्विच ऑन योर माइक। आपने बोला एक्सट्रीम, आई एक्सेप्टेड, बट समटाइम्स अगर एक्सट्रीम फेल हो जाता है तब ये चीजें काम आती हैं। इज इट क्लियर? ओके। आई होप यू रिमेंबर दिस नाउ। यप। Okay, I'm gonna put at hold, because then, like, what we do while we solve the questions that are dependent on critical reasoning, we don't directly mark. We simply put at hold if we are thinking कि हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, we put that option in hold. चलो आगे बढ़ते हैं।
For anarchists, the state is the enemy because all states apply violence and terror to maintain their control. Now, राशि, I can say कि ये भी एक्सट्रीम है. एक्सट्रीम तो ये भी है. क्या क्या एक्सट्रीम तो सी ऑप्शन भी लग रहा है. वो थोड़ा ऐसे नेगेटिव साउंड भी कर रहा था और मेरे को एक्सट्रीम भी लग रहा था, इसलिए मैंने वो बोला। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना. ऑप्शन सी भी आपको नेगेटिव लग रहा है पढ़ने में कि भाई सारे जो हैं स्टेट इज द एनिमी बिकॉज ऑल स्टेट्स अप्लाई वायलेंस एंड टेरर टू मेंटेन देयर कंट्रोल. डू यू थिंक इट इज अ नेगेटिव वन? बताओ बताओ बताओ, जो भी लग रहा है जल्दी बताओ. ये नहीं लग रहा मुझे नेगेटिव। ओके फाइन, नो वरीज. मंजू, आपकी क्या राय है इसमें? It is stated in the SHPC. They want to control over. They want control. State They wants control. want to maintain the control. This is the deciding factor. भाई उनको कंट्रोल तो चाहिए. ठीक है, तभी उसने नेपोलियन की बात की, तभी उसने बताया कि वो एमर्ज होता है, वो यहाँ यहाँ इम्पैक्ट कर रहा है, उसका ये इन्फ्लुएंस हुआ है एनार्किज्म का, वरना वो बोलता ही नहीं. The reason that the author has said that particular thing is because उनको चाहिए कि हाँ भाई एक कंट्रोल उनकी लाइफ में रहे, एक कंट्रोल उनका एग्जिस्ट करे. ठीक है, which is why the author is trying to say that thing. Considering this, option number C again eliminated. Clear? Yeah. Option number D देखते हैं. The failure of the French Revolution was because of its betrayal by the new class of politicians who emerged from it. Did it not happen? It is stated. It is clearly stated, and we even had a discussion on this, which is why again eliminated. Now, ध्यान से सुनना. Process of elimination justified. Logic यहाँ पे justified. ठीक है. जो अपन फ्रेमवर्क्स अभी तक पढ़े हैं जितने भी सारे के सारे जस्टिफाइड. जब ये सारी चीजें हो जाए, हाँ भाई ठीक है, चल अब मार्क कर दो कि हाँ भाई बी मेरा सही आंसर है. You know, that is the beauty of spending time with any question. मंजू तो सिंगल है, मंजू को क्या पता क्या होता है टाइम स्पेंड करना. Anyways, let's go to question number 3. According to the passage, what is one idea that is common to all form of anarchism? Question का type बताओ पहले. Question, what's the question type? Question क्या मांग रहा है आपसे? What is the actual anarchism? Okay. ठीक है, not quite right, not quite wrong, balanced है. राशि, ठीक, सही होगा होगा, गलत होगा होगा. आई एम नॉट हियर टू गिव मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन दैट यू से. जो भी है बताओ. आई वांट टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव फ्रॉम व्हिच यू सॉल्व द क्वेश्चंस. राशिका, थिंकिंग कैन यू टेल मी द क्वेश्चन टाइप्स, मतलब टाइप्स बता दो उसके, फिर उसको सिस्टम में बता दो, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास है तो. इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, नो वरीज. ध्यान से think. What is the one idea that is common to all? ऐसा कौन सी चीज होती है जो सबके लिए कॉमन होती है? बताओ. सबके लिए कॉमन होती है. नहीं आ रहा मुझे ये. Okay, no worries. Take it. That one idea that is common to all means main idea होता है यार. हाँ मेरे को लगा था बट मैंने बोला नहीं. क्यों नहीं बोला? You lost the opportunity. कॉर्पोरेट में अगर ये चीज करोगे तो you know, if you are
70K का पर्सन जो महीने का इतना इसलिए कमा तो रहा मैंने है, पूछा था, मतलब मेरे को ऐसा लग आइडिया ऐसा रहा था, बट मुझे था कंक्लूजन निकालने का ऐसा कुछ, बट मेरे डिड को आई नॉट क्वेश्चन से टाइप्स नहीं पता। डिड आई नॉट से जो लग रहा है होगा, डिड आई से दिस स्टेटमेंट और नॉट? यस यस। सो द कॉज, इससे लर्निंग क्या मिली कि भाई एक नॉर्मल सी अपॉर्चुनिटी थी जो आपको 70K से 100K पे ले जा सकती थी, बट बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट कि यार सही होगा कि नहीं होगा, आपने उस चीज को लेट गो कर दिया। मेन थिंग इज लर्निंग क्या मिल रही है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम कीप नोट ऑफ इट, रिमेंबर दिस। चलो देखते हैं। देर इज नो आइडिया कॉमन टू ऑल फॉर्म अनार्किज्म, दैट इज व्हाई इट इज अनार्की। बकवास, मतलब भाई ए इज बी, दैट इज व्हाई बी इज। ऐसा हो रहा था क्या कि ए के उसने कई सारी चीजें निकाल दी, फिर उनमें से एक बी था, बी की कई सारी चीजें निकली, ये ऐसा हो रहा था, ये हो रहा था कि ये हो रहा था? जल्दी बताओ, फास्ट। नेक्स्ट कैसे? ये वाली चीज नेक्स्ट हो रही वन। थी, हाँ। ये वाली चीज, ठीक है? तो इसके हिसाब से अपन को क्या चीज समझ में है कि यार देखो, ये तो नहीं हो सकता। अपन को निकालना है मेन आइडिया। अगर ये मेन आइडिया होता, अगर ये वाला ऑप्शन मेन आइडिया होता, तो वो इतने सारे जो आपके सामने रचनात्मक चीजें किया है ना, वो ऑथर नहीं करता। देयर इज अ रीजन द ऑथर हैज दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। दे ऑल फोकस ऑन द प्राइमेसी ऑफ द पावरफुल ऑफ द इंडिविजुअल, दे ऑल फोकस ऑन द प्राइमेसी ऑफ द पावरफुल। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो पूरा पैसेज था इसलिए लिखा गया ताकि अपन फोकस जो है वो इस चीज पे देख पाए कि भाई एक इंडिविजुअल की पावर क्या है, अपन उस चीज पे फोकस देख पाए, विच इज वाई यहाँ पे इसने ये चीज बोला है। अगेन दिस वाज नॉट द केस। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। दे ऑल derive from the work of Pierre Joseph Proudhon. They all derive, some of it did emerge. But not all. ये भी उड़ा दिए। बचता है कि जब तीन गलत है तो आखिरी में एक तो सही होगा ही, बट अपन लॉजिक भी देखेंगे। दे आर ऑल अपोज टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द स्टेट। बिल्कुल एंड तक ऑथर बस यही चीज तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। अनार्किस्ट कम्युनिज्म, कलेक्टिविस्ट अनार्किज्म, वापस रिपीट करो ना। ठीक है? दे आर ऑल अपोज्ड to the centralization of the power in the state. यार एक बात बताओ हमें, क्या अपन ये डिस्कस नहीं कर रहे थे कि फ्री विल होनी चाहिए? वर वी नॉट डिस्कस इट? फ्री विल इज नेसेसरी। बताओ जल्दी बताओ। या सेंट्रलाइज पावर स्टेट का अपोज कर रहा था। तो बस सेंट्रलाइजेशन आ गया पावर में, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो सिर्फ एक एंटिटी बन जाएगी। वन साइज फिट्स ऑल। अपन कहीं पर लिखी भी थी शायद, आई गेस आई डिलीटेड इट, हटा दिए शायद। आपके फ्री विल का फिर क्या? वेयर इज योर फ्री विल देन, अगर आप ये चीज बोल रहे हो? Your free will is dead in that case, which is why everyone is against this notion. बहुत कोशिश भी की गई कि हाँ यार चलो चीजें सुधर जाएं, शायद हम चीजें कर लें, बट नो, centralization was something that was not being conducted in it, which is why option number D is the correct answer choice. हर कोई बस यही बोलना चाह रहा था कि भाई देख, अगर आप सारी जगह अप्लाई कर दोगे and that idea is this, it cannot be the case. That cannot really happen. ये पार्ट क्लियर है? या अच्छे से राशिका आपको हम्म। अच्छे से? हाँ मतलब हाँ। अरे डाउट है तो पूछो भाई, उसी के लिए बैठे हैं।
मैंने ये पैसेज स्टार्टिंग से नहीं किया ना, तो मुझे मतलब जितना आपने बताया उतना ही, मतलब मैंने बीच में ज्वाइन किया था क्लास। एक सेकंड, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पैसेज से आई होप क्लैरिटी आएगी। The author believes that the new ruling class of politicians betrayed the principles of the French Revolution. Yes, they did, but does not specify in what way. In the context of the passage, which statement below is the likeliest explanation of that betrayal? Most closely related वाला आपका ये वाला क्वेश्चन है, तो उससे सबसे ज्यादा अलाइन करने वाला ऑप्शन कौन सा होगा, आपको ये बताना है। ये बात क्लियर है? या Okay. The new ruling class ruled power on strength of the workers' revolutionary anger, but then turned to oppress that very class. Initially, ये हुआ है. Hold it. The anarchists did not want a new ruling class, but they were not politically strong, or they were politically strong. कहीं ना कहीं वो थे, they were politically strong. ये तो नहीं हो सकता. This cannot be the likeliest explanation. उस धोखे का. The new ruling class was constituted mainly of anarchists who were against the destructive impact of the revolution. They were not constituted mainly. उसमें anarchists रहे होंगे, but mainly anarchists रहे उसमें. No, that was not the case. Again eliminated. The new ruling class struck a deal. The old ruling class took share power between them. ये तो हुआ ही नहीं था. अगर ये होता तो फिर ये betrayal कहाँ से आ गया आपका? ये betrayal कहाँ से आया? अगर ये लोग struck a deal कर दिए तो फिर तो 50-50 होना चाहिए था ना, बट ये तो हुआ नहीं. Which is why again this cannot be the answer. 3 एलिमिनेट हो गए, एक बचा है, बट लॉजिक देखते हैं. जो न्यू रूलिंग क्लास आई, दे रोड टू पावर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स. ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एंगर, बट देन टर्न टू ऑपरेस दैट वेरी क्लास. इनिशियली उन्होंने ये चीज किया कि हाँ भाई, वर्करों के साथ क्या किए, वो उस पर्टिकुलर चीज को वो लोग अटैक किए शुरुआत में, बट एट द सेम टाइम धीमे से क्या किए, उन्होंने वर्कर क्लास को ही एक्सप्लॉइट कर दिया. उन्होंने वर्कर क्लास को ही अप्रेस कर दिया. That is something which is coming the closest to the explanation of the betrayal, which is option number A is the correct answer for this. Clear है? या देखो, all I'm doing is, the only reason I'm able to solve the passage is because हमने पैसेज बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया है. आपने देखा होगा, एक दो बार ही गए हैं पैसेज में, वही प्रूव करने के लिए. Else if I am solving, I don't need to go back to the passage. I didn't do it. And the only reason I did was कि हाँ भाई चलो यहाँ पे ये चीज की मैंने, तो चलो प्रूव करके दिखाते हैं. Else apart from this, nothing. Next. फर्स्ट Of आल्सो the, इजी है किस. of the following sets of concept, identify the set that is conceptually closest to the concerns of the passage. Now, this is something that आपको लगे कि वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है आइडियल आंसर. देखते हैं. चलो, एनार्किज्म, बिट्रेयल, पावर, स्टेट. ठीक है, एनार्किज्म है, बिट्रेयल भी चलो है, पावर भी, स्टेट नॉट कन्विंसिंग. रिवॉल्यूशन, स्टेक, स्ट्राइक, ईगोइज्म है, बट उसके पार्ट सही है.
उल्टा की इसको एलिमिनेट किया। रिवॉल्यूशन, स्टेट, प्रोटेक्शन, अगेन इट इज अ पार्ट। अनार्किज्म कहाँ है यहाँ पे? एनीवेयर देखो, अगर एक अच्छा मतलब वेल प्रैक्टिस बनता है ना, उसकी बैटल जो होगा ए वर्सेस डी में ही होगी। अनार्किज्म है, ठीक है। स्टेट है, ठीक है। इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल का फ्रीडम भी आया, इंडिविजुअल के पावर भी आए, इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस भी आया, तीनों चीजें आ गई। ओके, फ्रीडम बिल्कुल है। पूरा जो एनार्किज्म का कंसेप्ट है वो बेस ही हो रहा है फ्रीडम के ऊपर, विच इज व्हाई डी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर डिस्पाइट बीइंग ए बीइंग अ करेक्ट वन। डी becomes the most closest and most correct answer in this case. ये part clear है कि नहीं? Yeah. Okay, now let's go towards the first question that we have kept on. Which one of the following best expresses the similarity between market and individualist market and free market liberals, as well as the difference between the former and the latter? Okay, fine. Let's see. Both reject the regulatory power of the. अच्छा, पहले question समझो, ठीक है? I'm sorry, I did not explain the question before. The question is asking that which of this particular option best? The very first thing is best. मतलब चारों सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, दो भी सही हो सकते हैं, but the battle would be between 1 versus 4, 1 versus 3, 1 versus 2. That's it. इनमें से सिर्फ एक ही है जो बहुत ज्यादा सही है। ये पार्ट क्लियर है कि नहीं? वेस्ट का केस समझ में आया? Yeah. Okay. हाँ West expresses the similarity between American individuals. Similarity. अब इसके बीच में similarity and the free market liberals. इसमें similarity as well as the difference between both of them. मतलब अपन को similarity भी बताना है और इसमें difference भी बताना है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? Yeah. पक्का? दोनों बताओ, जल्दी बताओ यार। हाँ हाँ हो गया। Okay. Now, first question. Both reject the regulatory power of the state, but the former, which is the American, favor a people state, while the latter favors state intervention in markets. फ्री मार्केट लिबरल्स क्यों करेंगे ये? हाँ, जो फ्री मार्केट लिबरल्स, व्हाई वुड दे फेवर द स्टेट इंटरवेंशन? को तो चाहिए भाई, मेरे को फ्री विल दे दो, बाकी चीजें मैं खुद से कर लूंगा। व्हाई आर यू कमिंग इनटू पिक्चर? What's the point of you existing even in this case? Again, first, similarity ठीक है, difference थोड़ा सा flawed है। Both prioritize individual autonomy. Yes, they do prioritize. Free will दोनों को बहुत जरूरी है। दोनों बोलते हैं भाई देख, मुझे फ्री विल तो चाहिए, बट the former American also emphasize mutual dependence. ठीक है, कुछ मैं करूंगा, कुछ तू कर, कुछ मेरी फ्री विल है, कुछ स्टेट डिपेंडेंस है, while the latter do not do so. ठीक है, latter मतलब फ्री मार्केट लिबरल्स। ऑब्वियसली why would they want कि भाई म्यूचुअल डिपेंडेंस हो? वो तो चाहेंगे ना कि फ्री मार्केट है, सब दे दो हमको, चला लेंगे। को तो चाहिए ये चीज थी। ठीक ठाक लग रहा है, होल्ड करता है। Both are sophisticated arguments for capitalism. Yes, they are. But the former argue for a morally upright capitalism. While the latter argue that the market is the morally upright capitalism. ठीक है, चलो मान लिया आप ये बोल रहे हो। While the latter argue that the market is the only morality. नहीं, आपने सिर्फ मार्केट पे फोकस दिया। कहाँ गई आपकी फ्री विल? कहाँ गई आपकी ऑटोनॉमी? कहाँ गए आपके लोग? टोटली फ्लॉड। सारी चीजें देखो सही थी, पता है, ये भी सही था, ये भी सही था, यहाँ आके उसने कचरा कर दिया, एलिमिनेट। बोथ आर फाउंडेड ऑन द मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ अल्ट्रुइज्म। किसी को कोई डाउट है? No. Okay. Both are founded on the moral principles of the altruism. Altruism मतलब आप लोगों का भला करते हो। But the latter conceive the market as a force too mystical for the former to comprehend. अच्छा, इसको ये लगता है कि भाई साहब देखो, भगवान तो मैं हूँ, सामने वाला पैंच, सॉरी, सामने वाला तो भाई साहब बेवकूफ है। ये तो था नहीं,
वो अपने ऊपर इतने फोकस हो गए थे, उनको लग ही नहीं रहा था। उनको लग रहा था सब मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो यहाँ तो हो नहीं रहा है वो केस, which is option number B is the correct answer. And we are done with passage number 1. अभी तक रिकॉल करो जो पढ़ाया, कुछ डाउट हो तो पूछो। I'm gonna wait 10 seconds. यहाँ पे ओनली मोरालिटी लिखा हुआ है, और जो थर्ड आंसर में और जो फोर्थ है वहाँ पे लिखा हुआ है टू मिस्टिकल। तो इन दोनों के बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हैं, कर मतलब सकते ऐसा हो, एक्सट्रीम देख के। कर सकते हो, बट अगेन द सेम रीजन आई वुड गिव एक्सट्रीम वाला जो हमने पहले दिया। हाँ हाँ, ओके। That मतलब is अगर ऐसे no, कंफ्यूज हो तो कर सकते हैं ना, तब कर मतलब। सकते हो। कंसिडर दैट एज योर लास्ट रिजॉर्ट। कुछ नहीं समझ आ रहा है तब वो चाहिए यूज कर, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज कैट इज नो मोर कैट 2020-21 है। 2022-23 से उसने जो डिफिकल्टी बढ़ाई है, देयर इज अ रीजन कि उसका वीआरसी का जो सेक्शन है वो इतना डिमांडिंग क्यों हो गया है। एंड ऑब्वियसली यार देयर इज अ रीजन कि हम इतनी पंचायत कर रहे हैं, पता है। आपने अगर, आई डोंट नो लाइक राशि इफ यू आर द गुड स्टूडेंट और नॉट, बट you might not have seen me in 2022 or 23 doing all these scribbling and all. हम बस देखते थे हाँ ये है मार करो निकली। I never used to do these things, but now I am. And the reason is that cat is way too much demanding for explanation, for comprehension, for interpretation. Critical reasoning उसके हर एक sentence में आ रही है. That is the problematic aspect, I would say. Do you get it now? Yep. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये खुद से करोगे कि हम चालू करें डायरेक्ट? जल्दी करो। I have solved KC. ओके राशि, you wanna do it or shall I solve? I will do it. ओके ठीक है, तो 3 पैराग्राफ, आई एम सेटिंग द टाइमर and Manju at the same time you do the same thing. 2 minutes and your time starts now. Okay. Você está violando? Sabe como você ler? इससे और उसको भी जाते हैं तो इसको सॉरी यार, बहुत बढ़िया, 3 मिनट ले लो। चलो उतना हो गया था कि नहीं? जल्दी बताओ। यार मैं रीड तो कर रही हूँ, बट मेरे को ना ऐसे पैसेज समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैंने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब मैं क्या रीड कर रही हूँ। बस मैं रीड करे जा रही हूँ, ऐसा हो रहा है। ओके चलो then let's not waste time in that. Only about myself. In the late 1960s, while studying the northern elephant seal population along the coast of Mexico and California, X and his colleagues couldn't help but notice that the threat calls of males at some sites sounded different from those of males at other sites. That was the first time dialects were documented in non-human mammal.
एक स्टडी कंडक्ट की गई बाय सम XYZ people, ठीक है, and that was done on elephant seals, and that resulted in introduction of dialects. इतना क्लियर है? या Okay. राशि आपको क्लियर है? नहीं। No worries, I'll do it again. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, I'll explain again. देखो 1960 के टाइम में when people were studying the northern elephant seal population, मेक्सिको और कैलिफोर्निया के पास कुछ लोगों ने नोटिस किया कि भाई थ्रेट कॉल्स जो आ रहे हैं मेल में, साइट नंबर ए और साइट नंबर बी, इन दोनों के थ्रेट कॉल्स डिफरेंट है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 500 है, एग्जाम्पल को। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम लोगों को पता चला कि भाई देखो, नॉन ह्यूमन एंटिटीज में भी, नॉन ह्यूमन मैमल्स है, they do have this thing called dialects, कि बिना किसी वर्बल कम्युनिकेशन के, बिना किसी वर्ड ऑफ माउथ के, बिना किसी राइटिंग के, you can share information, you can share things, you can share what you are feeling. अभी क्लियर है राशि? पक्का? हाँ। Okay. All the northern elephant seals that exist today are descendants of the small herd that survived on Isla Guadalupe. As that tiny population grew, अच्छा, अब इसने Isla Guadalupe लिखा है। I'm not really interested है क्या करेंगे हम जान के? I'm not interested in that, which is why हटा दिया हमने उस चीज को। As that tiny population grew, northern elephant seals started to recolonize former breeding location. ठीक है, ये जो इनका एग्जिस्टेंस है, ये कहाँ से आ रहा है? एक आइलैंड है IG के नाम से, नॉट इंस्टाग्राम, IG आइलैंड ऑफ थेयर्स, ठीक है। जैसे जैसे ये लोग बढ़े ना, जो नॉर्दर्न एलिफेंट थे वापस से अपने पुरानी कॉलोनीज में, या फिर पुराने जो इनके ब्रीडिंग लोकेशंस हैं उसमें, पुरानी लोकेशंस पे इमर्ज करने लगे। इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है। It was precisely on the more recently colonized island where Leboeuf found that the tempos of the male vocal display showed stronger differences to the ones from Isla Guadalupe, the founder colony. ठीक है, मतलब this I believe was the founder colony. ठीक है, इतना क्लियर है। एंड सिर्फ इसी पॉइंट पे इन लोगों को रियलाइज होता है कि भाई देख, जो डिस्ट्रेस कॉल है वो यहाँ पे अलग है, ठीक है, और दूसरी जगह पे जो ये चीज हुई थी कैलिफोर्निया कहीं पे भी, लेट्स नेम दैट लोकेशन एज P, क्योंकि अपन को लोकेशन यहाँ पे कहीं पे भी गिवन थी, ठीक है, हमने उसको P नाम दे दिया। तो यहाँ का जो डिस्ट्रेस कॉल का टेम्पो था, जो फ्रीक्वेंसी थी, जो स्पीड थी, ठीक है, यहाँ का डिस्ट्रेस कॉल और यहाँ का डिस्ट्रेस कॉल, दे वर नॉट सेम, में कुछ सिमिलैरिटी थी ही नहीं। अब ऑथर ने जब ये पूरी कहानी आपको बता दी है, तो क्या लगता है ऑथर अगला क्या करेगा इस चीज को? मंजू, यू टेल। वो क्यों हो रहा है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, उसने प्रॉब्लम बता दी ना बाप। प्रॉब्लम तो देखो बता दी, ऑथर ने पहले इंट्रोड्यूस किया बहुत नॉर्मली कि यार देखो सील है, ये है, वो है, थ्रेट कॉल करना है, ठीक है। फिर वो धीमे से बताता है कि ये कहाँ से आए हैं, इनका ओरिजिन कहाँ पे ओरिजिन हुआ है, तो ये जो डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंस आया कहाँ से, वाई इज दिस डिफरेंस बीइंग क्रिएटेड। वहां का IG का जो है वहां का अलग है, लोकेशन P का जो है उसका अलग है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, अब अपन उसको देखते हैं। ये आखिर सच में बिलीव करने वाली चीज है भी कि नहीं है, कितना रिलायबल है, कितना सही है, सच है भी कि नहीं है, अपन इस चीज के बारे में देखेंगे।
In order to test the reliability of these dialects over time, those people visited island in California every winter from 1968 to 1972. अब फिर वो लोग अपनी कहानी बता रहे हैं, वो लोग विजिट करते हैं, ठीक है, ठीक है, आप they visited, उन्होंने विजिट दिया टू दीज आइलैंड्स एंड देन अब वो बता रहे हैं what we found is that pulse rate increased but it still remained relatively slow compared to the other colonies we had measured in the past, Lebo told me. ठीक है, मतलब यार कैलिफोर्निया के आइलैंड में ये लोग जाते हैं, ठीक है, कैलिफोर्निया के आइलैंड में गए एंड देन 1968 से 1972 ये लोग इस चीज को ऑब्जर्व किए एंड उनको क्या समझ में आया कि यार उनकी जो पल्स रेट है, ठीक है, द पल्स रेट उनको इंक्रीज हो तो रही है बट फिर भी कहीं ना कहीं इट इज कंपैरेटिवली स्लो, कंपैरेटिवली स्लो। आता नहीं, ये चीज बोल दिया आपसे, किस चीज से स्लो है कि भाई हमने जो पास्ट में अपने मेजरमेंट्स किए थे, पास्ट मेजर्स के हिसाब से इट इज रिलेटिवली वेरी स्लो। ये चीज क्लियर हुई? हाँ दोनों? हाँ ओके, हाँ हाँ अब बढ़ते हैं आगे। अब आती है कहानी, तो इसको हम करेंगे स्किम स्किप स्कैन। At the individual level, pulse calls state same, individual same है। A male would maintain local vocal signature, average pulse change होती है, ठीक है। इंडिविजुअल जो है वो सेम हो रही है और जो एवरेज पल्स है वो चेंज हो रही है। इमिग्रेशन could have been responsible, उसके फिर कॉजेज बताए थे कि ये क्यों हो रहा है। 43% कुछ कुछ कुछ, फिर उसने कुछ सोचा, इसने कुछ सोचा, डायलेक्ट्स ये थे वो थे, दुनिया भर की पंचायत इसने क्रिएट की। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गया इस पर्टिकुलर आइलैंड की, ठीक है, उनकी पल्स रेट ज्यादा है, उससे उसने क्या डिटरमाइन किया कि यार देखो ये जो डायलेक्ट्स है ना, दे वर काइंड ऑफ रिजल्ट ऑफ आइसोलेशन ओवर टाइम, ठीक है। एंड देन फॉर इंस्टेंस एग्जांपल, इसको गोली मार दो। एग्जाम्पल तभी आएगा पिक्चर में जब, या एग्जाम्पल आपके लिए तभी आना चाहिए पिक्चर में जब आप पुरानी चीज समझ में नहीं आई। इफ यू हैव नॉट रियली अंडरस्टूड व्हाट इज बीइंग सेड on the prior basis, only and only then go for the examples, else you have no need to go towards the examples. Is this part clear to you? या Perfect. राशि आपको क्लियर है? हाँ यहाँ पे उसमें सिर्फ और सिर्फ डिटेलिंग्स, डिटेलिंग्स अबाउट परसेंट, that's it. Now, the last paragraph of utmost important, we'll read it very carefully. As the population continued to expand and the island kept on receiving immigrants from original population, मतलब जो ये वाला जो founder region था, the calls in all location would have eventually regressed to the average pulse rate to the founder colony. In the decades that followed, scientists noticed that the geographical variations reported in 1969 were not obvious anymore. Okay. In the early 2010s, while studying northern elephant seals on that particular island, एक रिसर्चर आती है, ठीक है, वो नोटिस करती है कि यार लेबो में जो उन्होंने सुना था कई अरसे पहले, इट वाज नॉट व्हाट शी इज हियरिंग नाउ। मतलब जो डिस्ट्रेस कॉल है, ठीक है, वो 90s 100s में कुछ था, इट वाज समथिंग एल्स, और अब 2000s में देखें इट इज समथिंग एल्स, ठीक है, आपको नहीं पता। And by performing more sophisticated statistical analysis on both sets of data, ये वाला डेटा, ये कंफर्म करते हैं कि यार जो डायलेक्ट्स पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं they have stopped existing, they have vanished.
They are not what they were previously. They are totally vanished. Yet, इसके बावजूद there are other differences between the males from the late 1960s and their great grandsons. 1960 में और 2020 में ये हो गए ग्रैंडफादर, ये हो गए ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर. Modern males exhibit more individual diversity and their calls are more complex. इनके जो कॉल्स हैं वो भाई सब कॉम्प्लेक्स है. ऑब्वियसली आई कांट अग्री. जेंजी इंसान का भी कॉम्प्लेक्स है, जेंजी एनिमल्स का भी कॉम्प्लेक्स है. Well, 50 years ago, the drumming pattern was quite simple, and the dialects denoted just a change in tempo. The calls recorded today have more complex structure, sometimes featuring doublets and doublets and triplets. पहले सिंगल्स आते थे, अब डबल और ट्रिपल खत्म. That is it. ओवरऑल अगर हम देखें जो हमारा पैसेज था वो सिर्फ हमें एक ही चीज को बता रहा था कि भैया ये जो एलिफेंट सील है जिसको हम हिंदी में दरियाई घोड़ा बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे थे, उनकी लोकेशन, उनकी फार्मलैंड लोकेशन, उनके डिस्ट्रेस कॉल जो थे वो कैसे रहे हैं, हाउ देयर डिस्ट्रेस कॉल वर्स प्रीवियसली, अभी उनके डिस्ट्रेस कॉल कैसे हैं, और अगर ये है तो क्यों है. अगर ये चीज है इसकी वजह क्या है, फिर उस वजह को एंड में क्लैरिफाई करके क्लोज कर देता है. इज दिस पार्ट क्लियर? या अच्छे से या हाँ हाँ. चलिए. एनएससी गिर गया वापस, यानी कैसे लॉस हो गया. Which one of the following conditions, if true, would have ensured that male northern elephant seals dialect did not disappear? सबसे पहली चीज, tell me, क्या मतलब वो क्वेश्चन का? What is the question asking? Okay, fine. Function of the question, if true, मतलब जल्दी बताओ. we are considering all are true. सब सही है. पहली चीज, ओके, स्टेज 1 क्रॉस. They could have ensured that male northern elephant seals dialects did not disappear. इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये इंश्योर करेगा कि भाई देखो ये जो डिसअपियरेंस की बात कर रही हो आप, ठीक है, वो डिसअपियरेंस नहीं हुआ है. ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये चीज इंश्योर करेगी? देखते हैं. Besides IG, there was one more surviving colony with the same average male called Tempo, from which no migration took place. Now, you know what I would say? This is a hell difficult question. उसका रीजन बताओ. बिकॉज किसी वो बता रहा है कि ये ट्रू हुआ तो वो नहीं हुआ. If it is true, then you can ensure that dialects were did not disappear. देखो कंडीशन थ्रू करके पैसेज से कंपेयर करके सोचना हाँ पड़ेगा. जी, हाँ जी, आपको पिक करना है हर एक ऑप्शन. Then you have to go towards the passage, then verify, then see the option, then decide. Ideally, ऐसे क्वेश्चंस कैट में स्ट्रेट अवे छोड़ने पड़ते हैं. स्ट्रेट अवे कुछ सोचो ही मत. I'm telling you, I'm fucking telling you, just simply leave these questions in CAT. No matter if you are a voracious reader, no matter if you have solved 50,000 questions, I don't fucking care, just leave it. But practice चल रही है, समझेंगे. लेवल हाई है इस वाले का, जरूर नहीं सकता है, ये देखते हैं. कौन सी चीज इंश्योर करेगी कि मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील के जो डायलेक्ट है वो डिसअपियर नहीं होते? बिसाइड्स आईजी एक और सर्वाइविंग कॉलोनी है विथ द सेम एवरेज मेल कॉल्ड टेम्पो, जिनका कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है.
भाई अगर माइग्रेशन नहीं हुआ है, आपकी ये टेरिटरी है, आप पूरा इसी टेरिटरी में बंध के रह गए और आपने एक्सपेंशन किया ही नहीं है अगली टेरिटरी में, हाउ कैन यू इंश्योर कि डिसअपियरेंस नहीं होगा? हाउ कैन यू पॉसिबली से दैट? मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई ये 100 यहाँ पे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो यहाँ हुआ नहीं, 100 का 500 हो सकता था बट आपने किया नहीं। एक पॉइंट के बाद ये तो मर जाएंगे ना 100 के 100 अगर यहीं पे रहेंगे। प्रैक्टिकली अगर देखें, फूड जो उनको मिलता है, द एनवायरनमेंट दैट दे आर लिविंग इन, चेंजेस तो होंगे उसमें। 100 के 100 रोज वही वही खाना जो मिल रहा है वो अगर खाएंगे, डोंट यू थिंक वो एक पॉइंट के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे वो रिसोर्सेस? तो डिसअपियर नहीं होगा उनका डिस्ट्रेस कॉल ऐसे। Is it ensuring that the distress call should not disappear in this case? Option number 1. Tell me. अरे बताओ। मतलब ये 100% क्यों नहीं है, मतलब इसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते। जजमेंट आप नहीं पास कर पाओगे उसमें। क्या भरोसा हाँ, भाई उसमें मर जाएंगे कि कोई बीमार हो गया, मान के चलो उनको कोई वायरस फैल गया, वो कोई ऐसा कुछ पदार्थ खा लिए जिससे उनका जो कॉलोनी है वही कोलैप्स होने लगे। एनीथिंग कैन हैपन, दिस इज नॉट अ जस्टिफाइड, इट इज नॉट इंश्योरिंग। इंश्योर नहीं कर रहा है ये। ठीक है भाई, हो सकता है तुम ठोकोगे लेकिन यू आर नॉट इंश्योरिंग माई सर्वाइवल। I cannot trust on this. The call tempo of individual, option number B, the call tempo of individual male seals in host colonies changed to match the average call tempo of immigrant male seals. उससे क्या? ये जो कॉल टेम्पो ऑफ इमिग्रेंट मेल सील्स हैं, कहाँ के हैं ये? हम्म, बताओ। आइडली जो आपका कॉल टेम्पो बदल रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग इन होस्ट कॉलोनी। वो आपका जो जेनजी वाला हमने बताया था ना 2020 वाला, और एक था 1967 वाला, कॉल टेम्पो इनका बदला है ना कि इनका, होस्ट का नहीं बदल रहा है कॉल टेम्पो। but it is not the case. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसमें, यहाँ पे कॉल टेम्पो कितना है, यहाँ पे कॉल टेम्पो कितना है। ग्रैंडसन इनका कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? बहुत वेरिएशंस आ रहे हैं, हार्ट बीट ऐसी जा रही है इनकी, बहुत वेरिएशंस है। विच इज अगेन, इट इज नॉट द होस्ट कॉलोनी जिसका कॉल टेम्पो बदल रहा है, इट इज द इमिग्रेंट वाला। इमिग्रेंट को मैच करना है होस्ट से, ना कि होस्ट को मैच करना है इमिग्रेंट से, विच इज वाई अगेन बी इज अ फ्लॉड आंसर चॉइस। बिसाइड्स, अच्छा क्लियर है बी की नहीं? Yeah, हाँ क्लियर। Okay. Besides IG, there was one more founder colony with the same average male call tempo, from which male seals migrated to very irrelevant. How is it ensuring? कैसे इंश्योर हो यार? ये स्टोरी बता रहा है। यानी ठीक है, मान लिए आप कह रहे हो, मान लेते हैं भैया कि आपका कहना सही है, लेकिन more founder colony with the same average call tempo, जहां से मेल सील्स माइग्रेट होके अदर कॉलोनीज में जाते हैं, तो उससे कॉल टेम्पो बदल जाएगा। व्हाट्स द जस्टिफाइंग ग्राउंड? क्योंकि भाई हमको तो अभी तक पैसे ने बस यही बताया है ना, एक ही आईजी में एक ही ऐसी फाउंडर कॉलोनी है। किसी चीज का देखे हो 4-5 फाउंडर होते? बताओ। इलेक्ट्रिसिटी के 4-5 फाउंडर हैं? No, है कि पहले उसने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट कर दी, फिर उसके बाद एक और ने कर दिया। जीरो का 4-5 फाउंडर्स हैं। देयर वाज ओनली वन पर्सन हु इन्वेंटेड जीरो एंड दैट वाज आर्यभट्ट। देयर वाज ओनली वन पर्सन हु न्यू इन्फिनिटी। देयर आर नॉट मल्टीपल केसेस इन दैट, which is why again C is a flawed answer choice. Technically D होना चाहिए, but at the same time let's go for the logic. Now the call tempo of individual immigrant male seals changed to match the average tempo of resident male seals. Host colony. अब आया भाई साहब, जो अपन यहाँ लॉजिक ढूंढ रहे थे वो लॉजिक यहाँ है।
विच इज व्हाई कि भाई इमिग्रेंट मेल सील्स का जो कॉल टेम्प है, ठीक है, वो बदल रहा है ताकि मैच कर सके होस्ट कॉलोनी से, ताकि होस्ट कॉलोनी का चेंज हो रहा है ताकि वो इमिग्रेंट से, मतलब इमिग्रेंट एंड होस्ट, ये बोलता है इमिग्रेंट का चेंज होगा तो होस्ट से भी करेगा, और ऊपर वाला क्या बोल रहा है, होस्ट चेंज करेगा तो इमिग्रेंट जैसा बनेगा, विच इज राइट, इज द करेक्ट आंसर. Is this part clear? Yeah, Oh, हाँ. अच्छे से. हम्म. I can see. देखते हैं. All of the following can be inferred from Lippard's study as described in the passage inside. Plus, minus, answer is plus, minus. The use of the factors of minus जो कंट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता. चेंजेस इन पॉपुलेशन एंड इमिग्रेशन. अच्छा, इसको एक काम करो, खुद सॉल्व करो, टाइमर लगाता हूँ. टाइम इज 1 minute. स्टार्ट. Guys, time's up. Time's up, guys. That is case. Hmm? आंसर बताओ जल्दी. A. मंजू, yours. यही है एक केस. यही है तुम्हारा भी. हाँ. ठीक है, देखते चलो. गलत है ये, वैसे बी होना चाहिए. Changes in population and migration had no effect on the call pulse rate of individual male northern elephant seals. ये बताओ, स्टेटेड लिखा है कि इन्फर्ड लिखा है? हाँ, इनफर इन्फर्ड का मतलब क्या होता है? जो पैसेज में ना हो. पैसेज में एक एज अ स्लाइट आइडिया, एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट गिवन, उसके बेसिस पे आपको खुद डिड्यूस करना है. ये चीज चलो एक मिस्टेक समझ में, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे. It had no effect on the call pulse rate of individual male northern elephant seals. ये तो कहीं ना कहीं मिल रहा है. How possibly can this be answered? ठीक है, हो सकता है कि गलत हो, but you cannot infer this now. The migration had no effect. तो किसी को इफेक्ट हुआ है ना. again I'm saying changes in population and migration break करते हैं चलो. Had no effect on the call pulse rate of individual male northern elephant seals. अब बताओ. मैंने भी यही सोच के मार्क किया था कि मतलब चेंज तो हुआ ही था ना उनका, मतलब पल्स रेट स्लो हो गया था.
ठीक है चलो, हमें ये बताओ, हमने जो हाईलाइट किए वो चीज एक बार और पढ़ो ऑप्शन अगेन, एक्टिवली रीड इट। पैसेज पे लेके चल सकते हो एक बार? अभी नहीं लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे, वेट करते हैं थोड़ा, पहले इसको ब्रेक डाउन करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मतलब यहाँ पे माइग्रेशन की वजह से ये गलत हुआ है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग दिमाग लगाओ, थिंक फॉर होराइजंस जो हो सकते हैं। किसी को पॉपुलेशन बदल रही भी बात कर रहा है एक सेकंड। हम्म? बताओ बताओ। अब बताओ। तो पॉपुलेशन एक्सपांड किया ही नहीं, देन हाउ वी फाइंड नाउ? चलो ठीक है, आई एम गोइंग टू rephrase this. Since it is increased, what you should have thought is that changes in population and migration had some effect on the call pulse rate of population and colony as a whole. ये चीज जो है ये तो हुई इंडिविजुअल मेल है। ये कहाँ तक हुआ है ये बताओ। Come tell me. एवरेज का चेंज हुआ किसी में, इंडिविजुअल का चेंज हुआ ही नहीं। Exactly. So there was no effect in individual level यार, population level पे changes हुए हैं bro, कॉलोनी के लेवल पे नहीं हुए, सॉरी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हुए। अब समझ आया क्या गलती थी? या राशि, now did you get it? सुन भी रहे थे कि नहीं? आ गया समझ। जो चेंजेस हुए हैं बेटा, है ना, वो आपके पॉपुलेशन लेवल पे हो रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे। Which is why the option is saying it has no effect on individual male northern elephant seals. तो भाई ये चेंजेस जब इस पे हो ही नहीं रहे हैं तो इस ऑप्शन के होने का मतलब ही क्या है? अगर आप रिवर्स रीजनिंग चेंजेस happening in population, changes happening on individual, अब बताओ नहीं समझ आ रहा है? हाँ आ गया समझ कि नहीं आया ये बताओ। आ गया समझ। ओके फाइन देन। The influx of the new northern elephant seals into an new island would have soon made the call pulse rate of its male seals exceed that those of Isla Guadalupe. इट इज कॉन्ट्रास्टिंग। Now this is something कि कहना कुछ और चाह रहा था, कह कुछ और दिया, पैसेज में कुछ और बोला गया था। भाई ओरिजिन जो है वहां पे ज्यादा है, जो ओरिजिनेटिंग आइलैंड है, कॉल फ्रीक्वेंसी सॉरी जो डिस्ट्रेस कॉल का पल्स रेट है वो ओरिजिनेटिंग वाले पॉइंट पे ज्यादा है, ना कि दूसरे वाले पे। बट इट इज रिवर्स। लिखे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपकी जो कॉल फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है फाउंडर कॉलोनी पे, और जो दूसरा वाला है वहां पे आपकी जो टेम्पो स्पीड है वो उतनी ज्यादा नहीं है। क्लियर हो रहा है ये चीज राशिका? इज इट क्लियर? नहीं कोई बात, वापस बता दो। चलो ऑप्शन बोलता है कि भाई इन्फ्लक्स ऑफ न्यू नदर्न एलिफेंट सील्स इनटू सम आइलैंड, जो नया आइलैंड है,
This would have soon made the call pulse rate of its male seal exceed that of those at Isla या जो IG वाला जो आइलैंड। तो भैया जी बात ऐसी है ना कि जो इमर्जिंग कॉलोनी है आपकी, जो फाउंडर कॉलोनी है आपके, जो पल्स रेट का जो कॉल है वो वहां पे ज्यादा था, ना कि आपके नए वाले आइलैंड पे। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि नए आइलैंड पे जो कॉल रेट है वो ज्यादा है, जिसके कारण अब इवेंचुअली फाउंडर कॉलोनी का जो कॉल रेट है वो भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन ये बोल रहा है। पैसेज क्या बोल रहा है कि आईजी वाले का ज्यादा था, इसलिए जो है उसके बाद इफेक्ट जो है वो एवी वाले में पड़ा है, जो नए वाला आइलैंड है। फाउंडर में ज्यादा हुआ इसलिए यहाँ पे आया धीमे धीमे वो कॉल रेट। ऑप्शन बोल रहा है कि नहीं भाई, कॉल रेट फाउंडर में सॉरी नए वाले में ज्यादा है इसलिए फाउंडर का बढ़ रहा है। अभी क्लियर है? हाँ। ओके देन होल्ड का। Male northern elephant seals might not have exhibited dialects that have. Male northern elephant seals might not have exhibited dialects had they not become nearly extinct in the 19th century, and yes, that this did happen. 19th century में वो कहीं ना कहीं extinct हो ही गए थे लगभग। Which is why again this is, this can be inferred and this is mentioned in the passage, which is why it cannot be the answer. The average call pulse rate of the male northern elephant seals at some new island increased from the early 70s till the disappearance. Irrelevant disappearance. क्या बोल रहा है भाई? कम हुआ मानता हूं, disappear हो गया। Considering that, B is the correct answer choice. ओके। Clear? हाँ। Okay. Yeah. Question number 8 and question number 9. I need the answers of both of these questions by 9 p.m. today. Hello. 10 p.m. today. अभी ठीक है, तब 2 घंटा कर लोगे? Yeah, kiss. चलो. We are done with the class. You guys can